Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of 8th class mathematics. Our topic is demonstrative geometry, unit number 10, exercise 10.2. Student, from the figure we know that the length of AB is equal to length of DE. AB and DE are the corresponding sides of these two triangles. Length of BC is equal to length of EF. BC and EF are the corresponding sides of these two triangles. Length of AC is equal to length of DF. AC and DF are the corresponding sides of these two triangles. A is equal to angle D, and angle A is corresponding angle of angle D. Angle B is equal to angle E. Angle B is corresponding angle of angle E. Angle C is equal to angle F, so angle C is corresponding angle of angle F. So we can write these statements in this form. Measurement of angle to see the figures. Measurements of side AB is equal to measurements of side DE. Measurements of side BC is equal to measurements of side EF. Measurements of side AC is equal to measurements of side DF. और बेटा ये थ्री साइड्स side AB, BC and CA are the corresponding sides of DE, EF and FD respectively. So we write the corresponding sides of two triangles. And we says that triangle ABC is congruent to triangle DEF. SSS postulate. SSS postulate means side postulate. Corresponding lengths of three sides of two triangles are equal. Angle A is equal to angle D. Measurement of angle A is equal to measurement of angle D. Measurement of angle B is equal to measurement of angle E, and measurement of angle C is equal to measurement of angle F. The corresponding angles of triangle. Corresponding angles of two triangles. Sides of two triangles. तो बेटा when length of three sides of the triangle are equal, the triangles are congruent. When three angles of a triangle are equal, then the triangles are congruent to each other. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो यहाँ कौन सा postulate यूज हो रहा है? एंगल postulate. एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि इफ़ ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल STU, देन विच साइड्स एंड एंगल हैव इक्वल मेजरमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 में देखें बेटा, अब उसने फिगर्स नहीं दी, उसने हमें गिवन दे दिया कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू STU. तो बेटा अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है? तो बेटा आप ये देखें, इसमें AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड थी? DE. BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड थी? EF. और FD के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी? ACA. तो बेटा राइट हमने किया AB, DF, BC, MEF, measurement of EF, measurement of DF is equal to measurement of AC. तो क्या लिखा हमने लिखा ट्राइंगल ABC is congruent to DEF.
तो बेटा इसको लिखने के बाद हमें पता चला कि जो फर्स्ट टू पॉइंट्स हमारे पास ए बी लेंथ, इसको लिखने के बाद हमें पता चला कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ आएगी, डी ई। बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ आएगी, ई एफ। और ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ आएगी, डी एफ। सिमिलरली बेटा हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी यू। तो इस स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि पी क्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, एस टी। क्यू आर के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, टी यू। और पी आर के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एस यू। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड पी क्यू इज इक्वल टू measurement of side ST. Measurement of PQ is equal to measurement of ST. Measurement of QR is equal to measurement of TU. Measurement of PR या RP लिख लें is equal to measurement of US. अगर इधर आप RP लिखेंगे तो इधर आप US लिखेंगे, अगर पी आर लिखेंगे तो एस यू लिखेंगे। इस बात का आपने नोटिस रखना है। और एंगल पी, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एस। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल टी। मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल यू। तो बेटा इसी चीज़ की उसने हमें डिमांड की थी। स्टूडेंट्स थ्योरम 4 में आप देखें, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल ऑपोजिट दीज साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है ए बी सी डी। ये कहते हैं कि इसकी ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी साइड। तो इसके जो एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ये थ्योरम में इसने प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट्स अगर किसी भी ट्राइंगल की टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों तो ये उसके बेस एंगल्स होते हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कोई भी ऐसी ट्राइंगल टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आपको कोई भी कहता है कि इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट्स मीन के लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल एंड दीज बेस एंगल्स आर इक्वल एंड इट्स बेस एंगल्स आर इक्वल। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, in an isosceles triangle the angle at the base is 45. At the base means कि these two angles, one angle is 45. Angle at the base means कि this angle is 45. अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी मस्ट 45 होगा। फाइंड द एंगल ऑपोजिट टू द बेस। ऑपोजिट टू द बेस कौन सा एंगल होता है? ऑपोजिट टू द बेस ये वाला एंगल होता है, इसको कहता है फाइंड करें। क्लियर? Exercise 10.2 question number 3, in an isosceles triangle the angle at the base is 45. Find the angle opposite to the base. तो बेटा इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं रफली। This is an isosceles triangle, this is a base angles. If this angle is 45, this angle is also 45. Find this angle. हम इस एंगल को नेम दे देते हैं x का। तो वी नो दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम करें तो वो 180 होता है। किसी भी टाइप की ट्राइंगल ले लें तो वी राइट 45 प्लस 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री।
x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि हमने ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाई है ये राइट एंगल ट्राइंगल है और x उस पर क्या है 90 डिग्री। दिस इज द x, दिस इज x। तो लेंथ ऑफ दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो ये बेस एंगल हो गए ना, ये बेस एंगल हो गए और दिस साइड्स आर इक्वल। ये देखें ये बेस एंगल हो गए और ये ऑपोजिट टू द बेस, तो वो 90 डिग्री का एंगल बन गया। बेटा ये उसने हमें एक फिगर दी है और इसमें उसने शो किया है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें गिवन दिया हुआ है। फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब बेटा जब बेस एंगल्स आर इक्वल तो साइड्स, यानी अब हमें कैसे पता चला कि बेस एंगल्स आर इक्वल, ये इसने गिवन दे दिया है। तो दीज टू साइड्स आर इक्वल। 6x - 8 इज इक्वल टू 4x + 2। बेटा देखने में ये स्टेटमेंट्स इक्वल नहीं लग रही, लेकिन जब आप यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये लेंथ्स दोनों की इक्वल आएगी। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। 6x - 4x is equal to 2 + 8. 2x is equal to 10. X is equal to 5. 10 divided by 2 is equal to 5. क्लियर? अब बेटा आपने ये तीनों साइड्स की लेंथ मेजर करनी है। फर्स्ट साइड आपके पास क्या है 6x - 8, तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। 6 × 5 - 8, 5 × 6 = 30 - 8 is equal to 22. Similarly 4x + 2 is equal to 4, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 5 + 2, तो 20 + 2 इज इक्वल टू 22। अब बेटा ये देखें ये भी 22 है, ये भी 22 है, तो दी लेंथ ऑफ दीज टू साइड्स आर इक्वल। व्हेन बेस एंगल्स आर इक्वल लेंथ ऑफ दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब हम फाइंड करते हैं 2x + 2, तो 2 × 5 + 2 इज इक्वल टू 10 + 2 इज इक्वल टू 12। तो ये हमने बेटा तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने 5 कहाँ से आया। ये बेटा मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है, आप इसमें एक स्टेप और इंक्रीज़ कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।